آج میں آپ کو سنانے والا ہوں فتح مکہ کی وہ کہانی جہاں 10,000 مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شہر میں واپس آئے، جہاں ایک بوند بھی خون نہیں بہایا، جہاں دشمنوں کو معاف کر دیا گیا اور جہاں انسانیت نے سب سے بڑا سبق سیکھا۔ فتح مکہ کی وہ کہانی جو تلواروں سے نہیں رحم سے ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی اور آج لے کر آیا ہوں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 8واں حصہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا خندق کی جنگ، جہاں پورا عرب مل کر مدینہ آیا، جہاں خندق کھودی گئی، جہاں اللہ کی مدد سے دشمن بھاگ کھڑے ہوئے۔ آج کی کہانی سب سے خوبصورت ہے۔ 8 ہجری رمضان کا مہینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے شہر، اپنے وطن مکہ میں واپس آئے، لیکن اس بار فتح کی حیثیت سے۔ تو چلیے واپس چلتے ہیں اس دن میں جب اتہاس بدل دیا گیا۔ دوستو، فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے پہلے حدیبیہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ 6 ہجری جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14 سے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ آئے، لیکن قریش نے روکا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حدیبیہ کی جگہ پر مسلمانوں کو روکنا پڑا۔ پھر قریش نے معاہدہ کرنے کی پیشکش کی۔ معاہدے کی شرطیں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھیں۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ذلیل کرنے والی شرطیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور صلح ہو گئی۔ 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے اسے فتح مبین یعنی کھلی فتح کہا۔ صحابہ حیران، یہ فتح کیسے ہوئی؟ لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ 2 سال امن رہا، اسلام پھیل رہا تھا، ہر طرف لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن پھر ایک حادثہ ہو گیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بنو بکر نے، جو قریش کے حلیف تھے، بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور قریش نے بنو بکر کی مدد کی۔ اعطا معاہدے کی خلافت۔ بنو خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم مدینہ آئے، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر چلائے، یا رسول اللہ، ہماری مدد کیجیے، قریش نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ہمارے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرتا یا عمرو بن سالم، عمرو، تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا تھا، مکہ فتح کرنا ہے، لیکن ایک خفیہ طریقے سے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، تیاری کرو لیکن کسی کو بتانا مت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم خذ الاعین بالاخبار عن قریش، اے اللہ، قریش سے آنکھوں اور خبریں چھپا دے تاکہ ہم انہیں ان کے ملک میں اچانک جا کر پکڑے۔ پورے مدینے میں تیاری شروع ہوئی۔ 10,000 مسلمان تیار ہو رہے تھے، لیکن قریش کو خبر نہیں تھی۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ غلطی ہو گئی تو وہ گھبرا گیا۔ وہ فوراً مدینہ آیا معاہدے کو دوبارہ پکا کرنے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ سیدھے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گیا، جو اب ام المومن تھی۔ ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ ام حبیبہ نے کہا، ابو جان، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔
अपनी बेटी से। यह सुनकर अबू सुफियान का दिल टूट गया। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, मुआहदे को आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कोई जवाब नहीं। अबू सुफियान मायूस होकर मक्का वापस चला गया। 10 रमजान 8 हिजरी 10,000 मुसलमानों का लश्कर मदीना से निकला। सही बुखारी में तफसील है कि मुहाजिरीन, अंसार, दूसरे कबीले से सब मिलकर यह अब तक की सबसे बड़ी इस्लामी फौज थी। जब मरज़हरान पहुंचे तब जाकर बताया गया, हम मक्का जा रहे हैं। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हर कबीला अलग अलग आग जलाए। पूरे वादी में हजारों आग। दूर से देखने वाले को लगे जैसे सितारे का मेला है। मक्का में अबू सुफियान को अंदाजा हो गया। रात को बदील बिन बरका के साथ छुप कर निकला हालात जानने। जब उन्होंने हजारों आग देखी तो घबरा गए। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो पहले ही मुसलमान हो चुके थे, वो अपने खच्चर पर सवार थे। उन्होंने अबू सुफियान को पहचान लिया। अबू सुफियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बास, मैं तो हलाक हो गया। अब्बास ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान मांगो। सुबह के वक्त अब्बास ने अबू सुफियान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत दें, इसकी गर्दन तोड़ दूं। अब्बास ने कहा, यह मेरी पनाह में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम जान लो ला इलाहा इल्लल्लाह? अबू सुफियान ने कहा, आप मेरे माँ बाप पर फिदा, आप कितने हलीम और करीम हैं। अगर अल्लाह के अलावा कोई माबूद होता आज तक काम आ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू सुफियान, क्या वक्त नहीं आया कि तुम जान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ? थोड़ी सी हिचकिचाहट, फिर बोला, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह। यह था मक्का के सबसे बड़े दुश्मन का इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास से फरमाया, अबू सुफियान को एक तरफ ले जाओ ताकि वो अल्लाह के लश्करों को देखे। जब मुख्तलिफ कबीलों के झंडे लहराते हुए गुजरे, अबू सुफियान हक्का बक्का रह गया। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज झंडा साद बिन उबादा के हाथ में। साद ने कहा, आज जंग का दिन है, आज काबा को हलाक किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पसंद नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि आज काबा को इज्जत दी जाएगी, और झंडा हजरत अली को दे दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से कहा, जाकर ऐलान कर दें, जो तेरे घर में दाखिल हो वो महफूज, जो हथियार डाल दे वो महफूज, जो मस्जिद हराम में जाए वो महफूज। अबू सुफियान दौड़कर मक्का पहुंचा। चिल्ला चिल्ला कर कहा, ए मक्का वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े लश्कर के साथ आ रहे हैं, लेकिन डरो मत, जो मेरे घर आ जाए वो महफूज। हिंद बिन्त उतबा, अबू सुफियान की बीबी ने कहा, कत्ल कर दो इस बदबू को, कैसा कायद है ये। लेकिन लोगों ने हिंद की बात नहीं सुनी। अब अमान की जगहों में जाकर छुप गए। यह था अमान का असर। 20 रमजान 8 हिजरी सुबह का वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। सर मुबारक सजदा शुक्र में झुका हुआ, ऊंटनी की पीठ पर। क्या अजीज, क्या इनकसारी, यह है जीत का असल अंदाज। चारों तरफ से लश्कर दाखिल हुआ। खालिद बिन वलीद जनूब से, जुबैर बिन अब्बाम शुमाल से, अबू उबैदा मगरिब से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मशरिक से,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे काबा शरीफ गए, हजरत अशबात को बोसा दिया, फिर काबा में 360 बुतों की तरफ इशारा किया। हाथों में लकड़ी थी जिससे बुत को छूते और पढ़ते जाते, बाकुल जाल हक बा जहाकल वातिल इन्नल वातिल कान जाहू का, हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही था। एक एक करके तमाम बुत जमीन पर गिर गए, काबा साफ हो गया, अल्लाह का घर पाक हो गया। अब आया वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था। सफा पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तमाम कुरैश जमा हुए, वही लोग जिन्होंने 20 साल तक सताया, जिन्होंने आपको घर से निकाला, जिन्होंने सहाबा को शहीद किया, जिन्होंने जंगें लड़ी, सबके दिलों में खौफ अब तो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कुरैश वालों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? सबने कहा, खैर आप शरीफ भाई हैं, शरीफ भाई के बेटे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज कहे वो इंसानियत की तारीख में सबसे खूबसूरत अल्फाज हैं। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। यह सुनकर पूरी कौम रो पड़ी। 20 साल की दुश्मनी एक लम्हे में खत्म। यह है रहमतुल आलमीन का अंदाज। इस माफी के बाद अजीब मंजर था। अबू जहल का बेटा इक्रिमा बिन अबी जहल आया और इस्लाम कबूल किया। सफवान बिन उमैया जो अभी भाग रहा था वापस आकर मुसलमान हुआ। हिंद बिन्त उतबा जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था वो भी आई। बड़े पर्दे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बड़े गुनाह किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल इस्लाम, इस्लाम पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। जब फजाला बिन उमैर छुप कर आपको कत्ल करने की नियत से आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, फजाला तुम क्या सोच रहे थे? फजाला का दिल पिघल गया, फौरन मुसलमान हो गया और कहा, या रसूल अल्लाह, जब से आपने हाथ रखा है आपसे ज्यादा महबूब कोई चीज नहीं। यह है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का असीर हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, तमाम बुत तोड़ दिए जाएं। उज्जा, लात, मनात, तमाम बड़े बुत टुकड़े टुकड़े खालिद बिन वलीद को भेजा तो वहां के पुजारी ने कहा, ए उज्जा, खालिद पर हमला कर। खालिद ने कहा, यह तो पत्थर का टुकड़ा है, और तलवार से काट कर टुकड़े कर दिए। 20 साल बाद मक्का मकरमा मुकम्मल तौर पर इस्लाम का घर बन गया। दोस्तों, आज के दौर में हमें क्या सीखना चाहिए? पहला सबक, जब आपकी जीत हो तो अजीजी करें, गुरूर नहीं। दूसरा सबक, माफी सबसे बड़ी ताकत है, बदला नहीं। तीसरा सबक, दुश्मन को भी एहसास से जीता जा सकता है। चौथा सबक, सब्र का फल मीठा होता है। आज जब कोई आपसे बुराई करे तो याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाकया, अफवाह दरगुजर से दिल जीते जाते हैं, तलवारों से नहीं। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 1 साल बाद हुनैन के मैदान में एक और बड़ी जंग होने वाली थी, जहां 12,000 मुसलमानों को इम्तिहान से गुजरना था, जहां पहले घबराहट, फिर सब्र, फिर फतह, फिर ताबूक का गज़बा, और फिर हज्जातुल विदा, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल। यह सफर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यह था फतेह मक्का की मुकम्मल कहानी।
313 बहादुरों की, 1000 दुश्मनों की, फरिश्तों के नुज़ूल की और अल्लाह की मदद की। अगर आप उस दौर में होते, अगर आपको यह मौका मिलता कि बदर की जंग में शरीक हो, तो क्या आप जाते? 313 में शामिल होते या डर कर पीछे हट जाते? जरूर कमेंट में बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर बदर की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आप भी चाहते हैं कि और लोगों तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ जाए, किसी को हिदायत मिल जाए, किसी का ईमान मजबूत हो जाए, और यह सब आपके नेकियों में लिखा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि अगली एपिसोड ताबूक की जंग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अगर कोई सवाल हो, कोई राय हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।